Depression. I guess 2 weeks ago, I was feeling the same kind of uh, distress, or I should say, depression. I was feeling so low. I didn't want to get up. I didn't want to do any work. I was procrastinating my work. I was feeling sick, although I was not sick. Mm, I lost my appetite and I don't want to eat anything. I don't want to talk to anyone, and I just wanted to be alone. I just wanted to lie down on my bed there and just think. So the reality check I got was a story about a person. थोड़ा बहुत ही मैं ब्रीफ में करके बताऊंगी कि जिसके पेरेंट्स भी नहीं थे, जिसके पास अपना एक घर नहीं था, एंड वो मुझसे आई गेस एज में सिर्फ 5 to 6 years ही ज़्यादा बड़े थे, एंड स्टिल ही वॉज वर्किंग. ही डिडंट हैव anything, even the basic commodities that we have. He didn't has his own home. उनके पास कभी कभी खाने को कुछ नहीं होता था, उनके पास कोई बात करने को नहीं था, रिश्तेदार नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे. And it's a true story, and still he was working to make the ends meet only for himself, only to earn two meals a day, or maybe even a single meal a day, to not to starve himself. That was the whole story. And the person who told me the story also told me कि now compare your life with that person, कि तुम्हारे पास सब कुछ है. You have a nice home, you have parents, you have friends, you have teachers, you go to school, you have such privileges, and you get to eat tasty, very tasty meals throughout the day, and you just get whatever you want. At this age, ऐसा भी नहीं है कि पूरी फैमिली का बोझ हमारे सर पर है कि हम कमा के लाएंगे तो ही हमारी फैमिली का पेट भरेगा. ऐसा भी कुछ नहीं है. There's nothing to be depressed about. The actual causes of stress is dose, DOSE. Not any kind of drug or alcoholic dose, no. Dose stands for the four major hormones, or I should say four major neurotransmitters that are present and secreted in our brain and manage our emotions, feelings, and basically over our overall body functions. D stands for dopamine, O stands for oxytocin, S stands for serotonin, and E stands for endorphins. In चारों में से the two major I'm going to talk about is dopamine and serotonin. ये दोनों hormones काम करते हैं आपको एक्टिव या अलर्ट रखने में, एंड दे आर रिलीज्ड व्हेन यू फील हैप्पी, एंड हैप्पीनेस ट्रिगर्स सेरोटोनिन, एंड देन सेरोटोनिन मेक्स यू हैप्पी. सो इट्स बेसिकली अ कैच 22, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. और ये दोनों इस एज में आके फ्लक्चुएट इसलिए करते हैं बिकॉज हमारी जो रूटीन है वो खराब हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल फोन स्क्रोलिंग, डूम फोन स्क्रोलिंग, ये डोपामीन, सेरोटोनिन के तो नहीं, पर ये डोपामीन के स्पाइक्स देता है हमारी बॉडी में. द फेक और अननेचुरल स्पाइक्स अगर हमें फोन स्क्रोलिंग से, इंस्टाग्राम रील स्क्रोलिंग से मिलते हैं, उसके बाद अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करें जिससे हमें एक्चुअल में हैप्पीनेस मिलेगी, तो उससे जो डोपामीन रिलीज होता है ना, वो इतना नहीं होता कि वो डूम स्क्रोलिंग वाला डोपामीन की स्पाइक मैच कर सके. इसलिए बार बार हमारा मन करता है टू स्क्रोल फोन, क्योंकि उससे डोपामीन बहुत हाई लेवल पे रिलीज होती है. बट दैट डज नॉट हैव एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर बॉडी. द नेचुरल डोपामीन सिक्रेटेड डज हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो कि आते हैं हंसने से, अपने किसी लव्ड वन से बात करने से, और डूइंग डांसिंग, और द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू फील हैप्पी. Also, serotonin it's like a inverse hormone to stress. Cortisol के बिल्कुल inverse चलता है. When you feel happy, serotonin is released. When you do exercise, serotonin is released. और इन दोनों का ना जो secretion होता है वो regulate करते हैं daily की exercises, healthy meal eating, yoga, meditation, sun exposure, and a better sleep routine. ऑप्टिमल स्लीप रूटीन ना 8 घंटे की बताई हुई है हमारी एज के अकॉर्डिंग, मेरी एज के अकॉर्डिंग. एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी दिस बिकॉज हमें क्या सिखाया जाता है स्कूल में, या फिर हम कहीं ऐसे आर्टिकल में पढ़ रहे थे कि 6 hours ऑफ स्लीप इज इनफ. नो, you really need 8 hours of sleep every day to make your body function to its fullest. और हाँ, मुझे भी जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे खुद को भी हो कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज 8 hours ऑफ स्लीप विद माई हेक्टिक स्लीप रूटीन, क्योंकि हमारा स्कूल टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद काम भी बहुत होता है पढ़ने वगैरह का. एंड आई कैन नॉट रियली मैनेज 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे, बट दैट इज द थिंग आई एम वर्किंग ऑन नाउ अ डेज. बिकॉज
अगर आप अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करके 2-3 घंटे निकाल भी लोगे ना, तो भी आप उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे। सो टेल मी व्हाट्स बेटर? आप अपनी 8 घंटे की नींद भी पूरी कर रहे हो और 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में या 1 घंटे में एफिशिएंटली भी कर रहे हो, जो कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में रहेगी। या फिर टू गेट 5 or 6 hours of sleep and get 2-3 hours for extra for the work you are doing and then also not performing well in that. सो सबसे पहले अपनी स्लीप फुलफिल करो, सॉरी स्लीप साइकिल फिक्स करो। इसके लिए मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपकी रूटीन मेरी तरह ख़राब हो रखी है, आपको रात रात भर नींद नहीं आती बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ वेकिंग अप लेट एंड स्लीपिंग लेट, देन देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डिटॉक्स। अब मुझे पूरा वो फ्रेज़ याद नहीं आ रहा, स्लीप से रिलेटेड ही था वो। सो इसके लिए आपको क्या करना होता है ना कि नो मैटर आप रात को कितने बजे सो रहे हो, 2 दिन के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप जिस भी टाइम पे उठना प्रेफर करोगे, 5 बजे, 6 बजे, जितने भी बजे आपको जल्दी उठना है। हाँ, पूरा दिन 2 दिन हो सकता है आपको पूरा दिन स्लीपी फील हो, हेडेक फील हो, लेथार्जी फील हो, बट 2 दिन के बाद तीसरे दिन रात को आपको नींद जल्दी आएगी एंड देन आप फिर जल्दी उठ के सुबह कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो अपनी नींद फिक्स करो, क्योंकि अगर आप अपनी नींद फिक्स करोगे ना, तो ये आपके लिए हार्मोन्स ठीक होंगे एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ दिस डिप्रेशन जोन दैट यू आर सेइंग। थर्ड थिंग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऐसी करनी है कि एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे पसीना निकले, जिससे योर बॉडी एक्चुअली मूव्स एंड फील्स कि हाँ, मतलब होता है ना, you know, when you do exercise and there's a wear and tear in your muscle, then that thing releases endorphins, which is again a feel good hormone. Like that is why stretching feels so good, because stretch करने से ना हमारे कुछ muscles होते हैं जो कि थोड़ा सा उनमें wear and tear होता है, जिससे endorphins release होता है, that is why we feel good. Second thing, हंसने से, when we laugh out loud, तो भी हमारे muscles में कुछ ऐसी movement होती है जिससे endorphins release होते हैं. The next thing I would tell you, to force yourself to involve in thoughtful activities that you actually love. जैसे मेरे केस में मुझे डांस करना बहुत पसंद है, गाना गाना बहुत पसंद है, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, कभी कभी मेरा पेंटिंग आर्ट स्केचेस में भी मन कर जाता है, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है। खैर मुझे तो खैर सब कुछ ही पसंद है, पर इसमें से आपको चूज़ करना है कि आपकी एक ऐसी थॉटफुल एक्टिविटी जिसको करके आपको मज़ा आता है, जिसको करके आपको खुद पे प्राउड फीलिंग आती है कि येस आई एम गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरी स्केचिंग में अच्छी है, यू नो दैट थिंग गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राइड विच रिलीजेज ऑक्सीटोसिन, एंड उससे भी बहुत आपको हेल्प मिलेगी अगर आप एकेडमिक स्ट्रेस वगैरह या इनसिक्योरिटीज़ या ओवर थिंकिंग या कंपैरिजन या फिर जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये सारी आपको छुटकारा मिल जाएगा इफ़ यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज़ दैट यू लव डूइंग। मतलब दिन में यार, माना मैं भी जानती हूँ बहुत स्ट्रेस होता है इस उम्र में, पढ़ाई का और कामों का, पर थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए निकालना चाहिए ना, टू डू एक्टिविटीज़ दैट यू लव डूइंग। ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे आप पूरा दिन सोच रहे हो, पूरा दिन आपका वेस्ट जा रहा है ना, आपके दिमाग में चीज़ें याद रह रही हैं, जो आप पढ़ रहे हो वो भूल जा रहे हो, इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, सिली मिस्टेक्स करके आ रहे हो, बिना मतलब की गलतियाँ करके आ रहे हो, एंड आपके ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो गई है। अगर उस बीच अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आपको 4 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने को उस सिचुएशन में, एंड फिर ये सिचुएशन आती है कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, खुश हो और अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, आपको सब कुछ याद रह रहा है, जो पढ़ रहे हो एक ही बारे में समझ आ रहा है, आपका ब्रेन एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, एंड उस बीच आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने को, बट उसमें भी यू आर डूइंग योर वर्क एफिशिएंटली। सो यू टेल मी विच सिचुएशन इज बेटर। अब आपको कहीं तो देखना पड़ेगा ना, हाँ 24 घंटे ही होते, तभी कह रही हूँ, आई गेस कम टाइम में मोर एफिशिएंटली काम करना इज वे मोर बेटर देन 4 घंटे एक ही पैराग्राफ को समझने की कोशिश करना, राइट। द नेक्स्ट थिंग आई वुड टेल यू, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज टू गेट स्पिरिचुअली ग्राउंडेड। whatever your religion is, whatever your beliefs are, whosoever God you follow, spiritually grounded होना बहुत ज़रूरी है। आपको सुबह शाम या फिर शाम या फिर मतलब एटलीस्ट दिन में मिनिमम एक बार तो विजिट अ नियर बाय टेम्पल। आपके घर पे हो सकता है, घर के साथ हो सकता है, या मंदिर नहीं भी जाना तो भी अपनी डिवाइस पे फ़ोटो निकाल के 5 मिनट बैठ के स्माइल फ्रॉम इनसाइड, ऐसे ना दिल से खुश होकर भगवान को थैंक यू बोलना कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे
इतनी अच्छी लाइफ थी, सब कुछ दिया, खाने को इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतने अच्छे लोग दिए, मुझे कैपेबल बनाया कि मैं सब कुछ कर सकूँ। थैंक यू बोलना है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है, रेदर देन कंप्लेनिंग गॉड कि गॉड भगवान मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं, उन 5 मिनट ना भगवान जी से खुल के बात करनी है, आपकी प्रॉब्लम वहाँ शेयर करनी है। यू नो, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना हमारे अंदर ही होता है, बस हम उसे ढूंढ नहीं पाते। वो कहते हैं ना भगवान सबके अंदर होते हैं। तो 5 मिनट निकाल के भगवान से बात तो करो, एक बार उनको मौका तो दो। द मोर यू लव कृष्णा, और द मतलब मेरी ये लाइन है कि द मोर यू लव कृष्णा द मोर यू रियलाइज दैट ही लव्ड यू फर्स्ट। तो स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हो एंड follow all these steps I told you for 1 month and you'll notice drastic changes in you. आप अच्छी एनर्जी रेडिएट करना शुरू करोगे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, लोग आप में पॉजिटिव चेंज नोटिस करेंगे, they'll come and they'll want to talk to you, you'll perform better in academics, you'll perform better at sports, you'll be more mentally strong, socially strong, physically strong, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। एंड आपकी लाइफ में आप रियलाइज़ करोगे कि प्रॉब्लम्स कभी इतनी थी ही नहीं। और अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर प्रॉब्लम्स आए तो आप ये विश ना करो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, पर आप ये विश करो कि मैं उन प्रॉब्लम्स का इतने अच्छे से उन प्रॉब्लम्स से डील कर सकूँ। Alright, so I guess this is it all I had to say about this topic, depression. हो सकता है कि जिस तरह का आपने एक्सपेक्ट किया था इस वीडियो का होना, जिस तरह के स्टेप्स आपने सोचे थे कि मैं बताऊंगी, मैंने उसमें से कुछ भी ना कहा हो, बिकॉज एक्चुअल में डिप्रेशन वो है ही नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं, जिस चीज़ का हमने हवा बना के रखा हुआ है। हम में से कोई भी डिप्रेशन में नहीं है, हम बस अलग हो गए, आइसोलेट हो गए, हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड नहीं है, हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम अपनी स्लीप साइकिल फिक्स नहीं करते, पूरा पूरा दिन फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही। भाई कैसे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही जब तुम्हारी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तुम भगवान से बात नहीं कर रहे हो, नेचर के पास नहीं जा रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। और कोई पिल्स या और कोई दवाइयाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू, दिस इज गोइंग टू ट्रीट यू। ये वो वाला डिप्रेशन है जो एक्चुअल में डिप्रेशन कॉग्निटिव डिजीज है। ये वो डिप्रेशन है जो हमें लगता है कि हमें है बट एक्चुअल में नहीं है, एंड ये उस वाले स्टेप्स है। और पता नहीं मैंने लास्ट में क्या गोल गोल करके क्या क्या बोल दिया, एडिट करते लगेगा पता मुझे। So yes, this is it for today's video. Thanks for watching. Give it a thumbs up if you like this video. Share it with your friends. Do let me know in the comment section below how you like this video, and do tell me future recommendations for more videos, and I'll meet you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Cause everyone is so loud.